ACB conducted a secret verification into the allegation that Sajid Yusuf Bhatt, Chief Financial Officer, and Zahoor Ahmad Dar, Executive Engineer, both presently posted in Srinagar Smart Steel Limited, have accumulated assets disproportionate to their lawful known source of income, and suspects are also living lavish and luxurious lifestyle. Sajid Yusuf Bhatt owns a commercial property at Rambagh, Srinagar, having actual price significantly much higher than the value of the sale deed paid by the suspect. Besides, multiple bank accounts with suspicious transactions. In this way, public servant, namely Sajid Yusuf Bhatt, son of Muhammad Yusuf Bhatt, resident of Namblabal Pampur, at present Daulatabad Khan Yard, Srinagar, presently posted as Chief Financial Officer, Srinagar Smart City Limited, has enriched himself illicitly by indulging in corrupt practices which attract commission of offences under Section 13(1)(b) read with 13(2) of Prevention of Corruption Act 1988 for possession of these assets, which are obviously disproportionate to his known sources of lawful income. Accordingly, FIR 1-2025 has been registered in Police Station ACB Srinagar. Zahoor Ahmad Dar owns a lavish multi-storied house at lane number 5, Ghalibabad, Shaltang, Srinagar. One sedan car, suspicious bank transactions in personal accounts and accounts of his spouse, acquisition of Benami properties and huge assets in forms of FDRs. In this way, public servant, namely Zahoor Ahmad Dar, son of Abdul Razak Dar, resident of Takan Waripora, Srinagar, at present Ghalibabad, lane 5, Shaltang, Srinagar, presently posted as Executive Engineer, Srinagar Smart Steel Limited, has enriched himself illicitly by indulging in corrupt practices which prima facie attract commission of offence under Section 3(1)(b) read with 13(2) of Prevention of Corruption Act 1988. Which are underway at different locations. I suppose at 7 different locations. Right now we are conducting search and investigation is in progress. अब मैं हिंदी और उर्दू में हिंदुस्तानी ज़बान में आपसे इसका जो है बताने की कोशिश करूँगा। हमारे पास कंप्लेंट्स आई थी कि श्रीनगर स्मार्ट सिटी में 2 गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ है, पब्लिक सर्वेंट्स हैं, जो साजिद यूसुफ डार जो वहाँ पे फाइनेंशियल जो है एडवाइज़र के तौर पे काम कर रहे हैं से हासिल की है, एंड अकॉर्डिंगली उसके बाद जो है 7 डिफरेंट लोकेशंस पे अभी जो मैं आपसे बात कर रहा हूँ सर्च चल रही है। थैंक यू वेरी मच। एनी क्वेश्चंस 1-2 ले सकते हैं सर। जो सर बोलिए जी सर, इसमें जो आपने अभी ये सर्च किए हैं तो क्या लगता है आपको कि कितना इसमें क्या और लोगों की इन्वॉल्वमेंट भी हो सकती है? क्योंकि अगर चीफ एडवाइजर जो आपने कहा चीफ फाइनेंशियल एडवाइजर हैं और एग्जीक्यूटिव इंजीनियर दे आर ऑन टॉप पोस्ट, तो इसमें क्या और ज्यादा लोगों के हो सकता है कि उस पर भी कार्रवाई होगी और कितना बड़ा ये घोटाला आपको लगता है? फिलहाल जो है चीज अभी चल रही है, तो जैसे ही उसकी डिटेल्स आएगी तो उसको फिर उसी अकॉर्डिंगली जो है उसमें कार्रवाई की जाएगी। सर बहुत से लोग ऐसे हैं जो शिकायत करना तो चाहते हैं, लेकिन आप मीडिया के माध्यम से बात कैसे बता दें अगर किसी को किसी तरह की दिक्कत है, इस तरह की जानकारी अगर क्या मैं क्वेश्चन कर सकता हूं सर अभी? जी प्लीज एक मिनट, जस्ट मिनट। यहाँ से एक क्वेश्चन आया था कि अगर कोई जो है सिटीजन कोई यहाँ का रहने वाला जो है कोई शिकायत करना चाहता है, ओबियसली हमारे पास माध्यम है जिसके थ्रू वो हमारे पास आ सकता है, उसका जो है नाम भी जाहिर नहीं होगा और उसमें जो है कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। जी क्वेश्चन शायद श्रीनगर से है, कहाँ से प्लीज? सर मैं श्रीनगर से। सर जिस तरीके से आज हमने कई लोकेशंस पे रेड्स देखी एसीबी की तरफ से और कई ऐसी जगह पे हम भी गए सर कवर करने के लिए, तो क्या कुछ आपने साइट से रिकवर किया है, क्या उसकी जानकारी दे पाएंगे आप? दूसरा ये है कि लगातार 2019 से जब स्मार्ट सिटी वजूद में आए तो लगातार क्वेश्चंस जो है उस पर रेज हो रहे थे, लेकिन अब जिस तरीके से कंप्लेंट हुआ, आप कह रहे हैं कि कंप्लेंट आई है हमारे पास और उसके बाद हमने ये सब एक्टिविटी की है, तो क्या हम ये सब देखिए आगे आने वाले दिनों में जिस तरीके से 2 एम्प्लॉइज का नाम लिया जा रहा है, क्या इन्वेस्टिगेशन होगी और भी कुछ आशंका या इसमें
फंसने के लिए बाकी एम्प्लॉइज की। तो जैसे आपने कहा कि इस वक्त आपको खुद भी पता है कि सर्चेस चल रहे हैं, तो जब तक वो कल्मिनेट नहीं होंगे तो तब तक शायद आई विल नॉट बी इन अ पोजीशन टू रिवील व्हाट वी हैव एक्चुअली सीज्ड फ्रॉम दोज लोकेशंस। और जहां तक ये बात की फिलहाल जो हमारे पास कंप्लेंट आई है उसमें हमने कार्रवाई की है, तो आगे भी लॉ अपने हिसाब से काम करेगा, बिकॉज लीगली जो हमारी कुछ रिक्वायरमेंट्स होती है वो उसको जब वो प्रोब के दौरान वो किया जाता है उसके बाद ही जो है कार्रवाई अमल में लाई जाती है। मेरा नाम सनन अब्बास है, मैं श्रीनगर से हूँ और मैं आपकी ब्रॉडकास्ट में साथ मेरा एक सवाल आपसे है, अगर आप मेरी आवाज सुन रहे हो तो आप ये सर को बता दीजिए। जी मैं सुन रहा हूँ जी। आपका शुक्रिया सर। मेरा सवाल है, आज की जो श्रीनगर में आपने कार्रवाई की बाद में 22 ईयर्स इन द प्रोफेशन ऑफ जर्नलिज्म, दिस इज नॉर्मल प्रैक्टिस, ऐसा कुछ इसमें नहीं है। बिकॉज का रीजन ये है कि आप जिस ऑफिस में कोई एस्टिमेटिव लोग हुए उनको उन्हें रेडे में पकड़ा, उनके एसेट पकड़े, जो भी पकड़ा, 16 दिन बाद उसकी श्रीनगर की या किसी भी कोर्ट से रिहाई हो जाएगी और फिर आपकी पीवी एजेंसी का मैक्सिमम मिनिमम 5-6 ईयर्स और 5-6 साल उस पर लगेंगे। तो उसके बाद वो कोर्ट में केस जाते जाते आपके और 5-6 साल लगेंगे, तो 10 साल बाद ना तो सर्विस होगा ना ये हो सकता है बहुत से लोग ऐसे जो जिंदा बनी होते हैं मर जाते हैं, फिर केस बंद हो जाता है। तो इस एसीपी की इस कार्रवाई का यूजुअली आम आदमी से कोई इंतजाम नहीं होता। आम बहुत से लोग ये भी कहते हैं कि ठीक है एसीपी वाला रास्ता बन गया, 10 दिन बाद रिहाई हो जाएगी, फिर प्राइस पोस्टिंग भी बहुत सी केसेस में होती है। तो कोई फंड है इस तरह की कार्रवाई का? और स्पेशली आई वांट टू नो, क्योंकि 6-6 साल अगर पीवी में लगते हैं और फिर 10-10 साल तक केस अदालत करनी पड़ता है, तो ऐसी कार्रवाई करने का फायदा नहीं। जो मैंने आपका सवाल जो है कुछ समझा वो शायद ये है कि काफ़ी लोगों के, मैं तो खैर अब रिपीट नहीं करूंगा सवाल, जवाब मेरा ये है कि कार्रवाई हमारा करना जो है वी डू इट एज पर लॉ। हमारा जो है काम होता है इसमें, देखिए ये जो सारा प्रोसेस है इसमें इन्वेस्टिगेशन से जुडिशियल डिटर्मिनेशन तक एक लंबी प्रोसेस होती है। कानून जो है, कानून का काम थोड़ा लंबा होता है। हमारे पास इस तरह के काफ़ी सारे जो है मिसालें हैं, काफ़ी सारे एग्जाम्पल्स में हैं जिसमें आप देख सकते हैं कि लोगों के खिलाफ ठीक ठाक कार्रवाई हुई है। ऐसा नहीं है कि कार्रवाई होती है और फिर लोग छूट जाते हैं। हाँ, बट यह है कि यह सारा काम जो है ये परफेक्टली तरीके पे नहीं हो सकता है। इसके लिए एक निज़ाम है, एक सिस्टम है। वी हैव टू गो थ्रू दैट सिस्टम, वी हैव टू रेस्पेक्ट दैट सिस्टम। और ये अल्टीमेटली कानून की जो हमारा जो काम है इसमें इन्वेस्टिगेशन करना और जुडिशियल डिटर्मिनेशन के लिए इसको ऑनरेबल कोर्ट ऑफ लॉ तक ले लेना, जहां पे इसकी जो है बाद में कार्रवाई होती है। बट देयर आर सेवरल एग्जांपल्स जिसमें आप देख सकते हैं कि लोगों के खिलाफ कार्रवाई हुई है और बहुत बेहतर तरीके से कार्रवाई हुई है। सॉरी, थोड़ा सा सप्लीमेंट्री क्वेश्चन है इसमें, क्या वो पूछ सकता हूँ? आप बताइए, थोड़ा सा आवाज कट रही है लेकिन मैं कोशिश करूंगा जितना भी मैं सुन पाऊंगा। आपकी आवाज अच्छी तरह सुन रही है, थोड़ा सा आवाज सबसे क्या इतना लंबा समय लगता है? इसके रीजन यही है कि आपके पास मैन पावर की कमी है, उतना टाइम लगता है फर्स्ट ऑफ ऑल कंप्लीट करने में। उसके बाद पुलिस के वर्ग का साथ आएगा मामले बनने के लिए वो मामला होती है, लेकिन क्या पीढ़ी में 4-5 साल 6 साल लगना मैन पावर की कमी है? और अगर मैन पावर की कमी है, कुछ है प्रोसेस मैन पावर को जो एसीपी का उसको बढ़ाने की? नहीं, हमारे पास मैन पावर की कमी नहीं है। हमारे पास जो है जो आज की डेट में गैजेट्स हो सकते हैं वो सब हमारे पास है। इसलिए आप देख रहे हैं कि सूरत भी आई है हमारी कार्रवाई में। लेकिन ये मैंने जैसे बताया कि ये वन वे ट्रैफिक नहीं होता है, इसमें लोगों को भी सामने आना होता है। फिर हमारे पास जो है एविडेंस कलेक्ट करनी होती है और एविडेंस कलेक्ट करना जो है बड़ा एक लंबा अमल होता है। उसके बाद जो है कोर्ट में जाता है ये जुडिशियल डिटर्मिनेशन के लिए। और कोई सवाल यहाँ पर? इस वजह से एक और सवाल है, ये क्या आप हमें बोल सकते हैं कि व्हाट इज द क्वांटम ऑफ दिस करप्शन यू आर टॉकिंग अबाउट? ये जो यू आर सेइंग दैट द मनी हैज एक्सचेंज हैंड्स, from whom have they taken the money? Are we looking into the construction companies? Are we looking into the contractors? Are we looking into other bureaucrats who were involved in this whole smart city project? इस पर थोड़ा अगर तफसील मिले, क्योंकि आपने बोला कि कुछ एलिगेशन जो आपके पास आई है वो प्रूव होने के बाद आपने FIR रजिस्टर किया है। So can you give a little insight about that?
because when we arrived there, तो राइट डिटेल तो हुआ क्या है इनके साथ? Yes. तो बंदे involved थे, Yes, they could not have been operating in vacuum. And क्या आपके पास कुछ और कंप्लेंट्स हैं किसी और ऑफिशियल से और कॉन्ट्रैक्टर्स या कंपनीज के बारे में? देखिए, I got your point. We had a very specific allegation against these two public servants in this regard, and then subsequently we started probe, and then the allegations against these public servants were substantiated, and then obviously when these were substantiated we had to lodge FIR against these individuals, and आगे भी अगर इस तरह की कोई कार्रवाई होती है तो उसमें हम कर लेंगे, बट एज ऑफ नाउ ये 2 लोगों के खिलाफ थी और जिसका मैंने रिजल्ट आपको बता दिया। सर लिया कैसे? कंस्ट्रक्शन कंपनी से लिया है, ऑफिशियल से लिया है, गवर्नमेंट फंड्स को एम्बेजल किया है, थोड़ा अगर एक्सप्लेन करें। नहीं वो, हाँ, मुझे लगता है शायद आपने सुना नहीं, ये हमारे पास जो है कानूनन एक इसकी जवाब है कि डिसप्रपोर्शनेट एसेट्स, अगर कोई पब्लिक सर्वेंट जो है अपने नॉन लीगल सोर्सेज से ज्यादा कमाता है, एसेट्स क्रिएट करता है, मूवेबल इमूवेबल, वो एफडीआर की सूरत में हो सकता है, वो जमीन की सूरत में हो सकता है, तो इस नवीयत में, इस केस में इन 2 इंडिविजुअल्स के खिलाफ ऐसी ही कंप्लेंट थी दैट दे हैव क्रिएटेड एसेट्स विच आर नॉट, वो उसके बराबर नहीं है, दैट्स नॉट प्रोपोर्शनली इक्वल, मतलब वहां वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो इसलिए वी हैड टू डू सम इंक्वायरी इन दिस रिगार्ड, एंड देन वी रीच्ड टू द कंक्लूजन दैट द एलिगेशंस वर ट्रू। उसके बाद जो है वी हैव लॉन्च्ड एफआईआर। भाई साहब, मैं इमरान बात कर रहा हूँ, इमरान नायकू पुलिस थाने श्रीनगर से। मेरा क्वेश्चन ये है कि पहले जो आज आपने 3500 करोड़ रुपए का पर्दाफाश किया है, जो स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट की हमारे पास नॉलेज है, ये 3500 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट है और 95% ऑप्शंस को लेकर हमने प्रोजेक्ट कंप्लीट किया है। मेरा सवाल ये है कि आपने कहा कि एक कंप्लेंट की बुनियाद पर एक्शन हुआ, एफआईआर हुई और उसमें 2 ऑप्शंस जो है इन्वॉल्व थे। सवाल यह है कि क्या किसी भी ऐसे प्रोजेक्ट पे या जब आपको किसी सरकारी इदारे की शिकायत आती है कि कहीं पे फंड्स का मिसयूज किया गया है, आपके पास कंप्लेंट आती है तो उसकी बुनियाद पर एक्शन होते हैं, या आपको अपने सोर्सेस होते हैं जहां आपको लगता है कि मिसयूज ऑफ गवर्नमेंट और पब्लिक फंड्स हुआ है और उसकी बुनियाद पर आपके पास ऐसी टीम है और आप अपनी तरफ से यानी कि एसीबी उसकी इन्वेस्टिगेशन करती है और यू आर टेकिंग द एक्शन। दूसरा मेरा यह है कि जब कोई मीडिया इदारा किसी सरकारी इदारे के मुताबिक खबर करता है या एनजीटी की कोई डायरेक्शन पास होती है कि यहाँ पे सही तरीके से फंड्स का यूज नहीं किया जाता है, क्या आप उसके बाद उस एनजीटी की या मीडिया रिपोर्ट की डायरेक्शन पर या खबर पर कोई अपनी तरह से कार्रवाई करते हैं एसीबी? जिसकी एक मिसाल हमारे पास है कि जो कुछ साल पहले आईएएस ऑफिसर ने जल जीवन मिशन का खुलासा किया था और जो कि सरकार की तरफ से कहा गया था कि वो बेबुनियाद है, लेकिन करोड़ों रुपए का उन्होंने जिक्र किया था। सो आप इस पर रिएक्शन दीजिए। थैंक यू सर। देखिए, मुझे लगता है जो सवाल आपका ये जनरल नेचर का है कि हमारी जो है एसीबी में कार्रवाई किस तरह होती है। ऑब्वियसली वी एक्ट, हमारा काम है, हम चूंकि एक ऑर्गेनाइजेशन है, हमें सूंघना है, हमारा ब्रेड एंड बटर है कि देखना कि कहाँ पे गलत हो रहा है तो उसके खिलाफ कार्रवाई करना है, बट ऑब्वियसली फॉर दैट वी रिक्वायर एविडेंस एज वेल। इसके अलावा हमारे पास कंप्लेंट भी आती है, तो दोनों सूरतों में आ सकती है। हमारे पास जो है व्हाट्सएप और बाकी जो माध्यम से हमारे पास प्लेटफॉर्म्स है जिसके थ्रू भी हमारे पास कंप्लेंट्स आती है, लेकिन ऑब्वियसली कंप्लेंट जो है पर से इस चीज को जो है ना उसके बाद जरूरी है कि हम उसमें जो है एविडेंस पहले कलेक्ट करें, पहले एलिगेशन सबस्टेंशिएट होनी चाहिए, उसके बाद ही कार्रवाई होती है। थैंक यू वेरी मच। सर मेरा नाम मोहम्मद यासीन है, मैं सीएमएस में हूँ। मेरा एक सवाल है सर, अक्सर देशों हमने देखा है कि एसीबी अपना काम करती है, चार्जशीट भी जो है वो आप जो है दायर करते हैं, लेकिन कोर्ट के साइड से जो हम देखते हैं तो वो जो इम्पैक्ट होना चाहिए एसीबी का जो करप्शन के खिलाफ है उसके ऊपर जो पुलिस में पाए जाते हैं वहाँ पे जज है उनको एडिशनल चार्ज दिया गया है, एंटी करप्शन कोर्ट अलग से नहीं थी। क्या डिपार्टमेंट ने कभी कोशिश की जुडिशरी से इस बारे में बात करने की एंटी करप्शन जो कोर्ट हो वो हर किसी अलग से हो, इंडिविजुअल उनके पास चार्जेस हो? वैसे ये जो है आप देखेंगे कि कोर्ट्स तो हर जगह पे है, ऐसा नहीं है। एंटी करप्शन के लिए तो अलग जजेस भी बैठे हैं, और सही है कि समाज में शायद लोगों को नजर नहीं आता कभी कि कितनी कार्रवाई हुई है। उसके लिए यू कैन कम टू आवर ऑफिस, हम आपको दिखा सकते हैं कि कितने हमारे पास केसेस है। इसके लिए एक बहुत बड़ा एक सिस्टम है, एक मैकेनिज्म है। वी हैव प्रोसिक्यूटर्स, वी हैव इन्वेस्टिगेटर्स, वी हैव एसपीज,
हमारे ब्रांच जो है पहले 2 पुलिस स्टेशन होते थे, 1 इन श्रीनगर एंड 1 इन जम्मू, नाउ वी हैव 8 पुलिस स्टेशन। सो ये जनरल नेचर की बातें जो है मुझे लगता है किसी और वक्त भी कर सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।